In these rational numbers, we have addition of rational numbers. Addition of rational numbers. And in this addition of rational numbers, we have some properties. The first property is closure property. I want everyone to write it down in the rough book. Now, what is closure property? A upon B and C upon D are rational numbers. Okay. Now, when you add them, A upon B plus C upon D, then whatever answer we get is also a rational number. A upon B और C upon D तो रेशनल नंबर है ही. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आंसर जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. This is the closure property. Okay. Let us see one example. Consider the number 1 upon 3 and 4 upon 9. When we add 1 upon 3 and 4 upon 9, it becomes 2 upon 9 plus 4 upon 9, which is equal to 6 upon 9. Sorry, 7 upon 9. So 1 upon 3 and 4 upon 9 is a rational number. When we add them, जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा. ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी की यही है कि a upon b and c upon d both are rational numbers, and when we add them, the answer that we get is also a rational number. So this is a closure property. Next, we come down to the commutative property. Commutative property is very simple for rational numbers. For example, if we have a upon b and c upon d as rational numbers, these both are rational numbers. Okay, a upon b and c upon d are rational numbers. So what we are supposed to do, if a upon b if a upon b plus c upon d, हम अगर दोनों को ऐड करते हैं, that is also equal to c upon d plus a upon b. Right now you have to write these properties in the rough book, and then you have to write afterwards in the fair book whatever I take mark for you from the textbook. A upon b plus c upon d. A upon b plus c upon d is equal to c upon d plus a upon b. पहले हमने ये लिखा और फिर ये लिखा. हम ये भी पहले लिख सकते हैं और फिर ये भी लिख सकते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में ये हो सकता है. ठीक है, लेट अस से 3/4 प्लस 1 सॉरी 3/5 प्लस 1/5. हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5 प्लस 3/5. We can also write like this, 3/5 plus 1/5. तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/5 plus 3/5. So this is the commutative property. Okay, please write it down.
Okay, now we have the next property, associative. Just pay attention. In this associative property, if we have A upon B, A upon B, C upon D, and E upon F, these three are the rational numbers. Then what we are supposed to do in associative property, we can write A upon B plus C upon D पहले लिखेंगे, देन E अपॉन F को ऐड करेंगे. ठीक है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू ये भी हो सकता है. पहले हम C अपॉन D को ऐड करें E अपॉन F के साथ, और फिर हम A अपॉन B को ऐड करें. पहले हम इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करें, द आंसर विल बी द सेम. पहले हम इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को ऐड करें, द आंसर विल बी द सेम. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज associative property. ठीक है, देखो, A upon B, C upon D and E upon F, these all three are rational numbers. यहाँ पहले हम इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को ऐड करें, आंसर तो सेम ही आने वाला है. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. The next type of property is existence of additive identity. Existence of additive identity, उसका मतलब क्या हो गया? पहले तो हम ये समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेशनल नंबर इज. फॉर एग्जांपल, इफ a upon b is a rational number, a upon b is a rational number, तो a upon b के साथ हम जीरो ऐड करें या हम जीरो के साथ a upon b ऐड करें, कुछ भी दोनों में से करते हैं, तो आंसर हमेशा a अपॉन b ही आएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, हम 3/7 को प्लस जीरो करें या 0 + 3/7 करें, आंसर हमेशा 3/7 ही आएगा. आंसर हमेशा 3/7 ही आएगा. Okay. So now we have the next property for rational numbers. This was additive identity. Now we have additive inverse. Very important property. Additive inverse. For example, if we have a upon b as a rational number, a upon b के साथ हम ऐसा क्या ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा. तो यहाँ पे हम करेंगे -a/b. फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं 3/8 के साथ हम ऐसा क्या ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, तो वो हो जाएगा -3/8. दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. हम ऐड करने के टाइम पे उसका साइन का इनवर्स ले लेते हैं तो आंसर जीरो आ जाएगा.
अगर 4/3 लेते हैं तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, -4/3। इफ वी टेक 1/7 तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, -1/7। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ -6/8 का एडिटिव इनवर्स तो +6/8। इन शॉर्ट हमें टोटल 0 लाना रहता है। उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। The same properties are for subtraction. Let me revise the closure property. See what actually closure property is. Pay attention. अगर a/b and c/d ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, clear? If both of them are rational numbers, then a/b plus c/d जब ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। Is it clear? Put a thumbs up if you are able to understand. Okay. So let us come down to page number 16. Here on page number 16, we are going to see some of the examples. Page number 16. Question number 1. What should be added to -7/8? -7/8 के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा to get -3/2? Right? This is the question. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू फॉर x, जो हमें नहीं पता। क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट दिस एज द आंसर। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे x लिखना रहेगा और ये नंबर को हम ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे। लास्ट ईयर आपने वेरिएबल सीखे थे। तो x इज इक्वल टू -3/2 तो ऐसे ही रहेगा। ये साइन साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगी, इट विल बी +7/8। नाउ टेक द LCM। LCM ऑफ 2 and 8 विल बी 8। मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। x इज इक्वल टू -12/8 प्लस 7/8। what will be the answer? What will be the answer? Put your answer in the check box. 19/16. Put your answers in the chat box. एक तो आंसर भी गलत देते हो और अनम्यूट भी करते हो, ना बोला अनम्यूट करने के लिए। Who said that 19/16? Please unmute yourself and give the answer. What is your name, beta? Who said 19/16? You don't know, beta, that you don't have to unmute, and your answer is also wrong. -12 plus 7 होगा -5/8. And these recording are going on YouTube. X is equal to -5/8. So this will be your answer. Let us come down to the second one on the same page. Question number 2. What should be subtracted from 5/7? 5/7 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिलेगा 1/21। दिस इज x। ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 1/21। ये इस साइड जाएगा -5/8।
7। एलसीएम लेना है, 21 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/21 माइनस 15/21. So this is minus 14/21. माइनस माइनस प्लस पर लेकिन कटिंग हो जाएगा, 2/3, x इज इक्वल टू 2/3. प्लीज राइट इट डाउन. Next sum, question number 3. The sum of two rational number is -6. Very important question. The sum of two rational number is -6/7. Okay. हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आता है -6/11. ओके. एक नंबर है -64/77. -64/77. फाइंड द अदर. दूसरा हमें नहीं पता है तो इधर हम x लिख देते हैं. ओके. सो ये वाला नंबर राइट साइड जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -6/11. ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 64/77. चैट बॉक्स में लिखो एलसीएम क्या होगा. Put your answers in the chat box. What will be the LCM? Everyone has to put the answer. 77 will be the answer. तो मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7. यहाँ पे भी 7. x इज इक्वल टू माइनस 6/7 जा कितना होगा. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. 6/7 जा वेरी गुड. -42 प्लस 64/77. चलो x की वैल्यू फाइनल क्या होगी बताओ जरा चैट बॉक्स में. पुट ऑल योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. x की वैल्यू क्या होगी. पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. पॉजिटिव होगी. (22/77). लेकिन कटिंग तो होगा ना. 11 2s आर 11 7s आर. सो x की वैल्यू होगी 2/7. कटिंग होने के बाद द आंसर विल बी 2/7. Okay. Now let us come down to the fourth question. Question number 4. Find the sum by suitable arrangement. 3/5 plus -2/3 plus -11/5 प्लस 4/3. अब सुटेबल अरेंजमेंट करना है तो सुटेबल अरेंजमेंट कैसे करेंगे. ये 5 वाले पहले टर्म्स ले लेंगे. विल टेक द 5 डिनोमिनेटर टर्म्स ऑन वन साइड. 3/5
प्लस माइनस माइनस 11/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस 4/3। चलो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3 - 11 कितना होगा, -8/5 प्लस ये हो जाएगा 2/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। इसको बोलते हैं सुटेबल अरेंजमेंट। Let us come down to example number 5. एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है, पे अटेंशन। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करनी रहेगी, आपको चेक करना। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। फर्स्ट वन -11/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 11/8। ओके। सेकेंड वन 3/-11, तो इसका होगा 3/11। तीसरा है -4/7, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 4/7। नेगेटिव साइन होगी तो चली जाएगी, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल। सेम इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर एक्सरसाइज 1.3।